हेलो एंड नमस्ते। एडुमस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट respiration in the human beings, that is from the lesson number 6, life processes. So today we shall be proceeding to the next topic, that is transportation in the plants and animals. So before going to the lesson or the topic, let us know what do you mean by transportation. वही जो vehicles रोड पे घूमते हैं? No, not at all. Transportation का मतलब होता है some minerals and the substances which are moving from one part to another part in the plants and animals. Okay, before going to the lesson or the topic, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि plants और animals में transportation कैसे होता है. Now, in the plants you know very well, leaves are the sources where photosynthesis takes place. Okay, and even the respiration, because oxygen can also enter through the stomatas. But whereas in the animals, you know very well it is not that easy. So it requires lot of organs or system that to carry the substances from one part to another. But whereas as in the plants, the cells are very active, so they require the less elaboration for the transportation of the material from one part to another. Okay, so now let's begin the transportation in the plants. So what is been getting transported in the plants? Transportation क्या होता है? Plants में क्या actually transport होता है? So it is water, food and minerals. ये जो major parts होता है वो transportation के तौर पे होता है, ठीक है? तो उसमें भी एक system होता है. So here in the plants also it is having one system to carry these materials from one part to another. So let's check out what is there here. Okay, so here transportation in the plants, it takes place by two systems, that is xylem and phloem. So what is xylem and phloem doing? Okay, xylem, it is a non-living tissue in the plants. Okay, or we can simply tell it is as xylem tissue which will transport water and minerals in the flowering plants. तो water और जो minerals होता है, xylem जो एक टिश्यू होता है उसके तौर पे ट्रांसपोर्ट होता है. तो वाटर कहाँ से आता है? यू नो वेरी वेल. हाउ डू द प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर? इट इज थ्रू द सॉइल. ओके, सॉइल में से जो पानी होता है इट इज कमिंग थ्रू द रूट हेयर और द प्लांट्स रूट्स, दैट इज विच इज हैविंग द रूट हेयर प्रेजेंट इन देम, दैट इज गेटिंग टेकिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल और वहाँ से जाता है xylem वेसल्स में, and from the xylem vessels it moves to the every part of the plant. Okay, along with the xylem there are again some materials, that is tracheids. Tracheids क्या होता है? Tracheids are, how are these tracheids looking? Tracheids are long, thin, spindle shaped. Okay, spindle तौर पे होता है and they are the only water conducting tissues in the non flowering plants. So tracheids जो ज़्यादातर होता है non flowering plants में work करता है. So it is not having any work in the flowering system. Okay, then let's move to the next, that is phloem. Phloem क्या होता है? Phloem is carrying the food from the leaves to the every part of the plant. जो food extra जो store होता है तो वो किसके तौर पे जाता है? It is going through the phloem. So phloem it is a living tissue. यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो लिविंग होता है एंड इट इज कैरिंग द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. और इसके साथ में ट्यूब्स जुड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स. द फ्लोएम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीव ट्यूब्स विच विल बी कैरिंग द फूड. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के तौर पे हम देखेंगे xylem और फ्लोएम कैसे होता है. सो यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोएम. सो फ्लोएम इज हैविंग द फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. उसका फंक्शन क्या होता है ये भी आप जान चुके हैं. देन अदर देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट इज हैविंग कंपेनियन सेल्स. ओके, देन इट इज हैविंग द फ्लोएम फाइबर एंड सीव ट्यूब्स. ये सीव ट्यूब्स जो होता है इट विल बी मेनली कैरिंग द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज xylem. Xylem is a very simple structure. Again here it is composed with the xylem parenchyma. It is having vessels. Tracheids आप देख सकते हैं. So it is having the small units present in them and it is having the xylem fiber. So most probably water and your minerals are being carried from the xylem, that is
the tubes. Okay, we can say that xylem fibers or xylem tissues that are helping in carrying the water and the minerals from one part to another. So here in this topic, water, food and minerals play a very important role which has to be carried from one part to another. तो next हम देखेंगे कि animals में क्या होता है. Now we shall see how does the transportation takes place in the humans. Okay, तो main human body में क्या transport होता है? एक होता है blood. तो पहले हम देखेंगे कि blood में क्या रहता है. So what is present in the blood? No, but ज़्यादातर हम देखते हैं blood होता क्या है. So blood is a red pigment or a liquid which is present throughout our body. ठीक है. So we shall see what is blood. पहले हम देखेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है. सो हियर द ब्लड इज हैविंग द मेन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है. फ्लूइड या हम कह सकते हैं कि इट इज अ लिक्विड विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. ठीक है, जैसे उसमें पानी भरा रहता है. सो इट इज हैविंग मिनरल्स, इट इज हैविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट. तो फिर हम देखेंगे उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं या डाइजेस्टेड फूड कुछ भी हो सकता है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक इट इज़ अ टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट. सो यू नो वेरी वेल, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो 9th स्टैंडर्ड में अपने पढ़ा है. सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट. सो लेट अस नो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. अब जब प्लाज्मा के बारे में हम पढ़े हैं, प्लाज्मा के अंदर फिर से एक टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं. सो व्हाट आर दोज टाइप्स ऑफ सेल्स? लेट्स सी. सो फर्स्ट इज अबाउट रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स क्या है? सो यूजुअली रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप. ओके, दे आर रेड इन कलर. हम उसे रेड ब्लड सेल्स तो बोल सकते हैं या तो फिर हम उसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये रेड आता कहाँ से, कलर आता कहाँ से ब्लड में? सो द कलर दैट वी गेट रेड इन द ब्लड इज थ्रू द पिगमेंट कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन. ओके, हम ज़्यादातर डॉक्टर के पास जब हम बीमार होते हैं तो देखते हैं कि दे चेक अबाउट द हेमोग्लोबिन, कितना परसेंट या ग्राम्स का हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. ठीक है. सो रेड ब्लड सेल्स इज हैविंग द पिगमेंट कॉल्ड एज hemoglobin. So what is red blood cell doing in the body? It is helping in carrying the oxygen throughout the body. ठीक है. ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, that we take it through the respiration process, so it is moving in the red blood cells which will move to all the parts of the body. तो hemoglobin carries carbon dioxide from body tissue to lungs also. इसके साथ में और एक काम क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है when oxygen is meeting the glucose, there the carbon dioxide is getting produced. पता है आपको, रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूटिलाइज नहीं करते. सो वी हैव टू थ्रो आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड. सो इवन द रेड ब्लड सेल्स इज हेल्पिंग इन टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी. ऑक्सीजन को अंदर भी लेके पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है, साथ ही ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकाला जाता है. देन यहाँ पे अगर हम उसका शेप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेड इन कलर, स्पेरिकल इन शेप एंड प्लस इट इज नॉट हैविंग न्यूक्लियाई. तो याद रखना चाहिए रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियाई नहीं होता है. ओके, तो ये एक सेल हो गया. तो नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स को फिर से हम वाइट ब्लड सेल्स या तो फिर उसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कह सकते हैं. तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हियर? सो WBC हम जिसे कहते हैं, सो इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीजेस. ओके, अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कम हो गए, सो यूजुअली आवर बॉडी विल बी नॉट फिट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस. सो हाउ इट इज हेल्पिंग इन फाइटिंग द डिसीजेस? फर्स्ट थिंग, इट इज हेल्पिंग इन फाइटिंग द डिसीज बिकॉज इट इज ईटिंग अप द जर्म्स. ठीक है, यहाँ पे जो जर्म्स हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स उसको खाते हैं और दे डिस्ट्रॉय द जर्म्स. देन इट मेक्स द केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज के बारे में आपको पता है. सो यूजुअली वी टेक एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज जो अपने आप बॉडी में जो प्रिपेयर होता है, दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीजेस. देन इफ यू सी द वाइट ब्लड सेल्स, दे आर यूजुअली लिटिल बिट येलोइश इन कलर. ओके, दे आर ऑल्सो स्पेरिकल and they also have nuclei. अगर हम
आरबीसी में देखेंगे तो दैट इज रेड ब्लड सेल्स में हम देखेंगे तो न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर प्रेजेंट है, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज प्लेटलेट्स. Platelets usually they are pinkish in color, okay, found in the blood. Then it helps in coagulation of the blood. Coagulation का मतलब यहाँ पे क्या होता है? It helps in clotting of the blood. Usually आप देखते हैं जब छोटे बच्चे गिर जाते हैं, गिरने से क्या होता है, उन्हें वुंड होता है, वुंड होने से साथ ही ब्लड निकलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो ब्लड क्या होता है, बहना कम होता है, isn't it? That is called as clotting, और हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं it is a coagulation of the blood. So platelets usually helps in coagulation and also अगर हम उसका न्यूक्लियस देखेंगे तो वहाँ पे they don't have nuclei. तो न्यूक्लियर किसमें प्रेजेंट नहीं है, एक तो आरबीसी और एक में है platelets. So they both don't have nuclei, but WBC it is having the nucleus present. Now if you see about the blood, you know very well, if you go to whenever we are sick or anything, द फर्स्ट डायग्नोस किया जाता है तो हमारा हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है, ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट करते हैं या तो फिर डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं या आरबीसी काउंट करते हैं. तो यू नो वेरी वेल मेल्स एंड फीमेल्स बोथ हैव सम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स. वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम या ज़्यादा होगा तो उसका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. तो अब हम जस्ट रिकॉल करेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड? फर्स्ट थिंग, इट हेल्प्स इन कैरिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. इट हेल्प्स इन इवन रिमूविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट फ्रॉम आवर बॉडी. इट हेल्प्स इन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स, ओके, ठीक है. उसमें इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ओके. इट हेल्प्स इवन इन पासिंग द मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द सेल्स. जहाँ डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड के तौर पे दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाके ट्रांसफर होते हैं, ठीक है. दिस आर द पार्ट्स ऑफ द ब्लड. अब हम इस देखेंगे कि आगे मेन जो ब्लड में या फिर हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है और कैसे होता है देखेंगे. नाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन, whatever the materials we told, like it might be enzymes, hormones, digested food, nutrients, कुछ भी हो, वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है. सो इन द ह्यूमन्स व्हेन वी आर लर्निंग, वी लर्न अबाउट द ह्यूमन व्हाट इज इट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? सो हियर वी कैन सी इन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स, दैट इज मेनली वी कॉल इट एज सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं. वहाँ पे दो organs involved होते हैं. One is your heart and other is blood vessels. What is the function of heart? How is the diagram presentation done? We'll see it later on. Before that, we shall move to the part of blood vessels. तो blood vessels में क्या compose होता है? One thing is about your arteries, veins and capillaries. So you have learned in your lower classes also. तो आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, वेन्स का फंक्शन क्या होता है और कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है. आई टेल यू ऑल दिस थ्री आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स. दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हेड टिल द टिप ऑफ द टो. तो दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है. तो आर्टरीज कैसे होते हैं? वो थिक वॉल्ड होते हैं. यूजुअली दे आर थिक वॉल्ड, बट वेयर एज वेन्स दे आर यूजुअली थिन वॉल्ड. एंड कैपिलरीज दे आर थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स, ठीक है. वो थिन भी होते हैं और ट्यूब्स जो प्रेजेंट होते हैं नैरो होते हैं, वो ब्रॉड नहीं होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. यू नो वेरी वेल, आर्टरीज क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ से? इट इज फ्रॉम द हार्ट थ्रू आउट द बॉडी. यू नो फ्रॉम द हार्ट. व्हाट इज हार्ट डूइंग? हार्ट इज डूइंग द पंपिंग वर्क, ओके. यू विल बी लर्निंग नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट. तो पहले हम याद रखेंगे कि आर्टरीज क्या करता है? आर्टरीज विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके. देन आवर वेन्स. सो व्हाट इज वेन्स डूइंग? वेन्स इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, ठीक है. उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बॉडी में यूटिलाइज नहीं करते. वी डोंट यूज दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज इट इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट हैज टू बी रिमूव्ड आउट. तो वेन में क्या होता है?
from the different parts of the body the deoxygenated blood is collected and it's moving to the heart. तो यहाँ पे वाइस वर्सा होता है. आर्टरीज में हम क्या देखते हैं, हार्ट इज पंपिंग the oxygenated blood from the heart to different parts of the body. लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर हार्ट में कलेक्ट होता है. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज कैपिलरीज. कैपिलरीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द वेरियस मटीरियल्स. ओके, like it might be oxygen, food, carbon dioxide, etc. between the blood and the body cells which is taking place in the capillaries. Capillaries कहाँ होता है? It is in between of the arteries and the veins. Actually it is helping in exchange of the different materials. Okay. Other than the blood, there is one more organ or the part that is helping in transport of the materials, that is lymph. तो lymph के बारे में हम next पढ़ेंगे. Then now we shall see about the heart and its functions. So now we shall see what is heart, what is its structure and its functions. Okay, so now first let's see the structure of the heart. तो heart कैसे दिखता है? So heart is roughly triangle in the shape. अगर हम देखेंगे तो triangle के shape में नजर आएगा. So it is made up of cardiac muscles. So cardiac muscles in the sense they are smooth muscles. हम हमेशा देखते हैं किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आएगा तो हम बोलते हैं he is died through cardiac arrest. So that is cardiac muscles. Then it is clenched fist. अगर हम साइज देखेंगे हमारे हार्ट का तो it is just exactly that of our fist. Then it is involved with the 4 chambers. तो वहाँ पे 4 chambers present रहते हैं. ज़्यादातर human beings, okay, mammals जिसे हम कहते हैं, they are made up of 4 chambers. And यहाँ पे जो circulation होता है, blood circulation जो होता है, यहाँ पे double circulation जिसे बोलते हैं, means it takes 2 times from heart to different parts of the body or from different parts of the body to the heart. तो यहाँ पे 2 बार होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम. ये 4 चेम्बर्स में क्या रहता है? 4 चेम्बर्स में रहता है आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. सो अपर साइड आर्ट्रियम एंड लोअर साइड वेंट्रिकल. ओके, लेफ्ट एंड राइट से डिवाइड होता है. आगे हम देखेंगे हार्ट का फंक्शन क्या है. सो हियर हार्ट इज गोइंग टू पंप द ब्लड अराउंड योर बॉडी. तो हार्ट का सिर्फ सिंपल फंक्शन होता है दैट इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी. ओके, देन व्हाट आर, अगर हम डायग्राम के तौर पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है. सो इट इज लिटिल बिट ऑफ ट्रायंगल शेप. सो हियर यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज. दिस इज द राइट साइड जो हम कहते हैं. ओके, देन इट इज हैविंग वेना कावा. ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये वेना कावा है. यहाँ पे जो अपर साइड होता है इसको राइट आर्ट्रियम बोलते हैं. नीचे का भाग जिसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल. सो वन पार्ट राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, देन इफ यू सी एट द लेफ्ट साइड यू आर हैविंग ओर्टा दैट इज कॉल्ड एज मेन आर्टरीज जिसे हम कहते हैं. देन इट इज मेड अप ऑफ पल्मोनरी वेन्स. देन लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. अपर साइड अगेन वी कैन सी लेफ्ट आर्ट्रियम एंड lower side we can see left ventricle. It is made up of muscular wall. Okay, and it is having the wall between which is dividing the segments or which is dividing the heart, that is called as septum. तो septum का function क्या होता है और what are the functions of this? Let's see. So first let's move with the pulmonary veins. So what is pulmonary vein doing in our body? So pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. क्या करता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो लंग से कहाँ आता है? इट इज कमिंग टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? आपको पता है जब लेफ्ट आर्ट्रियम फिलअप होता है सो द ब्लड इज ऑटोमेटिकली पुश्ड डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड पुश होने से कहाँ जाता है? इट इज गोइंग टू द लेफ्ट ventricle. Okay, we can see here the left atrium pushes the blood to the left ventricle through V1. V1 का मतलब होता है valve 1. Okay, valve का और septum का क्या function होता है? वो कभी भी blood को mix होने नहीं देते. It does not allow the blood to mix up. Okay, or exchange we can say. Then left atrium के बाद में जाता है left ventricle में. So it will be pushed from the upper to the lower side. So here we can see in the left ventricle the oxygenated blood is forced to move to the aorta, that is main artery. तो यहाँ से कहाँ जाता है? It is moving to the aorta. यहाँ से aorta में कहाँ जाता है? It is moving again back to the different parts of the body. Then after that it is coming to the vena cava. Vena cava का क्या होता है? अगर यहाँ पे हम
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम बोलते हैं, इट मूव्स टू थ्रू आउट द बॉडी, तो वहाँ पे क्या फंक्शन करता है? सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन इट इज मूविंग in the cells, what it is doing, we have learned in the respiratory that it is breaking down the glucose molecules. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है. एनर्जी तो हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है. सो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सिंग विद द ब्लड एंड फ्रॉम देयर इट इज बीन कैरिड अगेन टू द हार्ट. ओके, सो हाउ इज दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूविंग? सो वेना कावा जो है, ये जो मेन पार्ट है, यहाँ पे क्या करता है? इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट आर्टरियम. तो वेना कावा फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी इट टेक्स एंड इट इज मूविंग टू द राइट आर्टरियम. ओके, आर्टरियम के बाद में कहाँ जाता है? विल अगेन सी द फंक्शंस. देन वेयर डज द ब्लड गोज आफ्टर वेना कावा? वेना कावा के जाने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वो हो जाता है राइट आर्टरियम में. तो राइट आर्टरियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो वहाँ पे भी राइट आर्टरियम में जब वो पोर्शन जो फिलअप होता है फिर से ब्लड को डाउनवर्ड पुश करता है जहाँ राइट वेंट्रिकल में जाता है. ओके, देन आफ्टर गोइंग टू द राइट वेंट्रिकल, देन वेयर डज दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज? So the deoxygenated blood is pumped to the lungs through the pulmonary arteries. हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से okay, from the right ventricle it has been pushed to the pulmonary okay arteries. So here it is pushed back to the lungs. यहाँ से फिर respiratory system में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है through respiratory organs it has been pushed out of our body. So here we can see they are the important functions that is been usually asked in the examination. Diagram of the heart and the functions of the chambers including the septum, pulmonary veins, aorta, left atrium, left ventricle, then right atrium, right atrium, right ventricle, then vena cava. इसके functions हमेशा पूछे जाते हैं. So you have to be concentrated on this function. तो next होता है, हम देखेंगे कि chambers usually हमने देखा है कि mammals, so we like human beings are having 4 chambers. Then what about amphibians? So amphibians you know very well, they live both in water and on the land. तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं या तो फिर एनिमल्स रहते हैं, उनके चेम्बर्स हमेशा 3 रहते हैं. तो एक होता है, एक 2 आर विथ आर्ट्रिया एंड 1 इज विथ वेंट्रिकल. ओके, वेयर एज अ फिश को हम देखेंगे तो उसके सिर्फ 2 ही चेम्बर है, 1 इज विथ आर्ट्रियम एंड 1 इज विथ वेंट्रिकल. सो नाउ वी शैल मूव विद द नेक्स्ट पार्ट. अगर आप अपना हाथ दिल पे रखेंगे तो कुछ साउंड आता है. यू मस्ट हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड. क्या होता है? यू हियर द साउंड दैट इज लब डब लब डब. तो ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द हार्ट इज पंपिंग द ब्लड इन योर बॉडी. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है. ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं हमेशा? हार्ट बीट. सो हार्ट बीट क्या होता है? सो लेट्स से व्हाट इज हार्ट बीट फर्स्ट. Heartbeat is nothing else but the one complete contraction and relaxation of the heart is called as heartbeat. So one complete contraction and relaxation, pumping and doing, pumping बंद होना, pumping होना, जो continuous process होता है हम उसे क्या बोलते हैं? heartbeat. So this heartbeat usually differs. So it is as a normally it will be beating 70 to 72 times in a minute. अगर 1 मिनट का हम टाइम रख के हार्टबीट देखेंगे तो ज़्यादातर 70 से 72 मिनट टाइम्स हो जाएगा. लेकिन इट इज़ नॉट एवरी टाइम सेम विद द यंगस्टर्स और विद द ओल्ड पीपल. ओके, इट इज़ यूजुअली मोर और लेस. एंड इवन व्हेन वी आर नॉर्मली वॉकिंग और सिटिंग it beats 70 to 70 times, but that only when we are running it increases, isn't it? तो ऑक्सीजन कंटेंट जब लेस होता है तब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर जाता रहता है, तब ऑटोमेटिकली हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं. सो इट डिफर्स देयर. देन यू नो वेरी वेल, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो बीट्स चेक करने के लिए डॉक्टर हमेशा रिस्ट पे भी हाथ रख कर देखते हैं. तो हम उससे क्या बोलते हैं? यू माइट हैव टेस्टेड, ये एक्टिविटी आपके लोअर क्लासेस में कराया होगा टीचर ने. whenever she asks you to just touch your left hand and touch the right hand at your wrist, you can hear some beats. आपको कुछ sensation हो जाएगा वहाँ पे beats का. तो हम उससे क्या बोलते हैं? So we call that it as a pulse. So what is pulse? The expansion of an artery each time the blood into it is called as pulse. जैसे ही artery से blood अंदर जाता रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? Pulse.
So it is also same as that of heartbeat, that is 70 to 72 times in a minute. ठीक है. तो ये हो गया हार्टबीट और पल्स. तो फिर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या वो डिफर हो जाता है? यस, यूजुअली इट हैपन्स. नॉर्मली हम देखते हैं 70 to 70 टाइम्स, बट समटाइम्स यूजुअली इट विल बी वेरी लो, समटाइम्स इट गोज वेरी फास्ट. तो हम उसे क्या बोलते हैं? सो दैट इज बीन कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर. यू नो वेरी वेल, बीपी जिसे हम कहते हैं, बीपी लो या बीपी हाई. नॉर्मली ओल्ड पीपल वी सी दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी हम बोलते हैं. ठीक है, ये हाई बीपी आता है कैसे? यूजुअली व्हेन द पर्सन इज इन द प्रेशर और वेदर ही इज इन द टेंशन, माइंड सेट से जब वो बराबर से काम नहीं करता है, बॉडी विल नॉट स्टार्ट फंक्शनिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर और टेंशन, देन द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. हम उसे बोलते हैं हाई बीपी. या जब वाइस वर्सा भी हो जाता है, अगर हम ज़्यादातर टेंशन लेते तो वो लो भी हो सकता है, तो हम उसे लो बीपी भी कहते हैं. तो ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है? लेट्स सी. सो ब्लड प्रेशर इज नथिंग एल्स बट द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. क्या होता है ब्लड प्रेशर यहाँ पे? सी, द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. तो यहाँ पे टू वेज हैं. सो टू वैल्यूज यहाँ पे फॉर्म होते हैं. वो क्या है टू वैल्यूज? सो द ब्लड प्रेशर इज बीन measured in the two ways, that is one is called as systolic और one is called as diastolic. Systolic का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होता है. ओके, यहाँ सी द मैक्सिमम प्रेशर दैट इज व्हेन इट कम्स टू द कॉन्ट्रैक्शन फेज. जो पंप होते रहता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलते हैं. वहाँ पे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. तो कितना होता है? इट इज 120 mmHg. 120 mmHg का मतलब क्या होता है? या 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी. ओके, वैसे ही होता है डायस्टोलिक. डायस्टोलिक क्या होता है? मिनिमम प्रेशर. याद रखिए, सिस्टोलिक होता है मैक्सिमम, डायस्टोलिक होता है मिनिमम. तो मिनिमम प्रेशर कब होता है? जब रिलैक्सेशन फेज में होता है, जब ऑलरेडी ब्लड पंप हो जाता है, बाहर जाता है, तो हम रिलैक्सेशन पे मोड पे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन फेज, द हार्ट. ओके, तो उसका वैल्यू क्या होता है? तो इट विल बी 80 mmHg. उसे बोलते हैं 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी. तो ये दोनों मिलाकर एक बीपी, तो ब्लड प्रेशर को काउंट किया जाता है, जिसे यूजुअली डॉक्टर्स बताते हैं 120/80 mmHg. 120/80 इज नथिंग एल्स बट इट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर दैट वी सी. अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ऑटोमेटिकली द वैल्यूज ओवर हियर विल ऑल्सो इंक्रीज. तो ये 140 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, 160 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. या तो फिर जब लो बीपी हो सकता है, सो इट मे गो अराउंड 90, 70, 80. तो यहाँ पे हो जाता है अगेन कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज लो बीपी. सो यूजुअली इन दिस पार्ट दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ओके, और एनिमल्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में हमने देखा है कि जाइलम और फ्लोएम कैसे वर्कआउट होता है, उनके पार्ट्स क्या है. ओके, देन इन ह्यूमन बींग्स वी हैव स्टडीड अबाउट द मेन जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के पार्ट्स हमने पढ़ा है. देन हाउ इज द ब्लड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट आवर बॉडी, दैट इज थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज थ्रू द हार्ट. ओके, हार्ट का डायग्राम देखा है हमने, उसके फंक्शंस देखे हैं, उनके पार्ट्स देखे हैं. सो नेक्स्ट video will be moving to the lymphatic system and the last part of the lesson, that is excretory system. If you have any doubts, you can comment me on my channel, but before ending the part, I would tell you that don't forget to like, share and subscribe our EduMust. All the best.